हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा था अ वाटरिंग राइम। ठीक है, आप लोगों को पोएम लर्न करवा दी थी, आप लोगों ने याद भी कर ली होगी आई होप। तो अब हम इसके और वन मोर थिंग, आपको इसके न्यू वर्ड्स भी लिखने थे। ठीक है, आप इसके न्यू वर्ड्स कर लीजिएगा। ऑल्सो फाइंड सम वर्ड्स विच यू फाइंड डिफिकल्ट। ओके, सो ऑल्सो नोट देम in your notebook and find out their Hindi mean or their English mean from dictionary, right? Okay, let's start. Here you can see the new words. Now let's move on to the question answer, that is reading is fun section. Now our first question is, what is the best time to water the plants? पोएम में क्या देखा था हम लोगों ने, which is what is the right time to water the plant? So now you can see in these two lines you can see the answer. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. So early in the morning or the evening, this is the right time to water any kind of plant. So your answer will be early in the morning or the evening hour. Only these two lines will be the answer of your question. Okay, this is the answer of question number 1. Okay, now let's read the second question. When should we not water the plants? So let's find out. Now, see this line. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. तो watering at noonday, दोपहर के टाइम में अगर हम फ्लावर्स को, प्लांट्स को जो है वाटरिंग करेंगे, उनको पानी देंगे, तो फिर क्या करेगा, वो वर्क नहीं करेगा और वो कारण बन जाएगा किसी भी फ्लावर की या किसी भी प्लांट के डाई के लिए, राइट? तो इट विल बी द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. Only you will write watering at noonday. ठीक है, let's read the third question. Which part of plant should we water? किस प्लांट को वाटर करना चाहिए, पानी देना चाहिए? Now, water at root. Water at the roots. Flowers keep their mouth bare. We should wear our boots. Soak the earth around them. Then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. So when we water the plant from the roots, it will automatically reach to the other parts of the plants. ठीक है, तो your answer of third question will be water at roots. ठीक है, I hope you all got. Now let's move on to the next activity, that is bird building. इसमें आपको ये जो कई सारे फ्लावर्स के नेम है, ये जम्बल्ड वर्ड में दिया, जम्बल्ड वर्ड में दिया गया है. आपको इसको अनजम्बल करके एक प्रॉपर जो है वो फ्लावर का नेम पता लगाना था. ये एक्टिविटी आई होप आप लोगों ने कर दी थी. प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको बता दिया था. अब हम क्रॉसवर्ड पजल को देखेंगे. You have visited your school, garden and seen different kinds of plants, shrubs and trees. This grid has a name. Which grid? You can see this grid. Okay, this grid has the names of different parts of a tree. Look for these words: bud, pod, leaf, stem, roots, thorns, branches and flowers as fast as you can, vertically, horizontally and diagonally. तो इसमें कई सारे जो हैं वो फ्लावर्स के, बर्ड्स के और इस तरीके से सब दिए गए हैं, पार्ट्स ऑफ ट्रीज दिए गए हैं इसमें. तो आपको ये पता लगाना है. तो इट इज़ वेरी इजी, आप लोग कर लेंगे इसको. ठीक है, ये क्रॉसवर्ड पजल जो है वो भी आपको सुलझानी है. ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है. ठीक है, ना ये जरूर क्वेश्चंस करने हैं आपको. ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 बनाइएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बनाइएगा. What happens when we water plants in the morning? तो अभी हमने क्या पढ़ा था? They will grow well or they will dry up. So now in this question we are talking about the morning session.
So they will grow well. Our flowers will grow well. From where do flowers get water? कहाँ से पानी मिलता है फ्लावर्स को? From the bottom roots या from the top leaves? तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? From the bottom roots. So in first question answer will be they will grow well, and in second question's answer will be from the bottom या roots, right? Now say aloud. These are the rhyming words. राइमिंग वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड पे एंड करते हैं? लाइक अर्ली, कर्ली, श्योरली, आर, आर, फ्लावर, फ्लोर, शार, देयर, केयर, कुड, हुड, शुड, वेयर, देयर, वेयर, सीट, शीट, शेक, सेक, ब्रेड, स्प्रेड. ठीक है, तो इस तरीके से ये हाई, साय, तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में जो है नोट करना है पूरा. पिक आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम दीज वर्ड्स. साइलेंट लेटर कौन से होते हैं? जिनका प्रोनाउंसिएशन में मीनिंग जब हम पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की तो उसका प्रोनाउंसिएशन में उस वर्ड का साउंड नहीं आता, तो वो लेटर्स जो होते हैं वो साइलेंट लेटर कहलाते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस HOUR, तो इसमें हम आर पढ़ते हैं, इसको हावर नहीं पढ़ते हैं. तो इन दिस लेटर दिस वर्ड H साइलेंट, सो यू जस्ट अंडरलाइन. ठीक है, दो साइलेंट वर्ड्स. ऑफन, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. OFTEN, इसको हम ऑफन पढ़ते हैं, ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं. सो इन दिस साइलेंट वर्ड विल बी T. T will be the silent letter. ऐसे ही राइट, इसको हम राइट नहीं पढ़ते, इसको हम राइट पढ़ते हैं. सो इन दिस W will be the silent word. इसको हम नाइट नहीं पढ़ते हैं, इसको नाइट पढ़ते हैं. सो K will be the silent word. ऐसे ही आप इन सबको बोल बोल के देखिए और जो भी वर्ड आपको साइलेंट लगता है आप उसको करिए. और अगर नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी. ओके, राइट द राइमिंग वर्ड्स. अभी हमने राइमिंग वर्ड्स पढ़े थे. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. मॉर्निंग का इवनिंग कर दिया. कार का यू कैन सी बार. ऐसे ही आप हाई का साय कर सकते हो, बूट्स का रूट्स कर सकते हो, हीट का वन सेक, हीट का बीट भी हो सकता है. ठीक है, वेयर का देयर हो सकता है, अभी आपने ऊपर जैसे पढ़े थे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग एंड इन ING. यू कैन सी ऑल दीज वर्ड्स आर एंडिंग विद ING वर्ड्स. यू कैन सी. ठीक है, राइट 6 more words. Now we have to write 6 more words to which ING can be added at the end to form a new word. तो ठीक है, चलिए लिख देते हैं. सपोज दैट लेट्स हैव अ वर्ड दैट इज राइट. ठीक है, so when we use ING then it will convert in WRITING. Writing, same you can write the word listening, speaking, running. ठीक है, dancing. So in this way you may write 6 words. Look the words in the poem which sounds like the words given below. तो ये सेम चीज़ है, सेम साउंड पे एंड करने वाले वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. एंड अगेन वी हैव टू राइट राइमिंग वर्ड्स हियर. आई होप आप लोग कर लेंगे इसे. नाउ दिस इज द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. In the sentences below, the capital letters, commas, full stop and question mark are missing. You can see these are the simple sentences where you don't find any kind of capital letter, comma, full stop and question mark, nothing. It is just a simple sentence. So put these in correct place. Now we have to punctuate all the marks in this sentence. So let's do it. On Monday I'll go to school.
तो सबसे पहले तो किसी भी जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, वी ऑल नो दैट। तो हम इसको ऑन मंडे, MONDAY, एंड ऑन मंडे, ये एक्स्ट्रा लेटर्स हैं तो इस वजह से एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, इसके बाद हम इसको कॉमा करेंगे। एंड आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, वी विल मेक इट इन अ कैपिटल लेटर। विल, again we will write all these things in a small letter. Go to school, and at the end of the any sentence we will put full stop, and we will full stop only when it is not the question mark sentence. ठीक है, if it will be the question, then we will put question mark here. So since it is a simple sentence, so we will put full stop here at the end of the sentence. तो आई होप ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे कि फर्स्ट लेटर आपको किसी भी सेंटेंस का कैपिटल लेटर में बनाना होता है, और फिर उसके बाद आपको उसी तरीके से चीज़ों को लेते हुए स्मॉल लेटर्स में करते हुए, अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है वहाँ पे तो फिर हम उसको कॉमा से ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद पूरे सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों लिखे जाएंगे। अगर क्वेश्चन जो जो सेंटेंस हमें प्रोवाइड किया गया है, अगर उसमें किसी से क्वेश्चन पूछने का आस्किंग सेंस आए तो हम उसमें फिर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, अदरवाइज वी विल put simply full stop there, right? तो ये सब आप लोग कर लेंगे, ये सारी वही हैं, पंक्चुएशन है ये। सो नाउ इसी पर हमारा जो है वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ द गिविंग ट्री। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग।